بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری بہن سلمیٰ گائناکالوجسٹ تھی جبکہ میں ڈینٹسٹ تھی۔ ایک یکبستہ شام کو میری دوست آسیہ مجھ سے اپنے دانتوں کا معائنہ کروانے آئی کہ درد زام میں مبتلا ہو گئی، تو فوراً اسے میں سلمیٰ کے کلینک لے گئی۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد آسیہ کو آپا کے سپرد کر کے میں واپس لوٹ رہی تھی کہ اچانک وہ حادثہ ہو گیا۔ اس دن سڑک سنسان تھی۔ سردیوں میں تو سرے شام ہی ہو کا عالم ہو جاتا ہے۔ میں آسیہ کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی کہ موڑ پر کوئی سایہ تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور میری کار سے ٹکرا گیا۔ بریک لگانے کی پوری کوشش کی مگر ناکام رہی۔ بمشکل چند ہی قدم آگے گاڑی روک پائی۔ میں نے محسوس کیا کہ کار کا کونا اسے لگا ہے اور وہ سایہ سڑک پر گر گیا ہے۔ خیال آیا کہ زیادہ چوٹ نہ لگی ہو۔ ایسے میں کسی کو بے یار و مددگار چھوڑ جانا انسانیت نہ تھی۔ سوچا کہ مجھے دیکھنا ہی ہوگا اور اگر ضرورت ہوئی تو ہسپتال لے جانا ہوگا۔ ممکن ہے بر وقت طبی امداد سے اس کی جان بچ جائے۔ پولیس کی جھنجٹ میں پڑے بغیر میں اس کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتی تھی۔ قصور میرا نہ تھا، میں تو میانہ روی سے ڈرائیو کرتی تھی، لیکن اب صورتحال سے نمٹنا لازم تھا کیونکہ کسی کی زندگی کا سوال تھا۔ ارد گرد نگاہیں دوڑائیں، دور نزدیک کوئی نہ تھا۔ تبھی گاڑی سے اتر کر اس کے پاس پہنچی۔ وہ ایک لڑکی تھی، شلوار قمیص میں ملبوس اور ایک بڑا سا دوپٹہ لیے ہوئے، صحت مند اور جوان سال۔ وہ پوری طرح ہوش میں تھی۔ کو زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی، تاہم گرنے سے کچھ نہ کچھ صدمہ تو ضرور پہنچا ہوگا۔ سہارا دے کر اسے اٹھایا اور اپنی گاڑی تک لائی۔ پچھلی سیٹ پر اس کو لٹا دیا اور دوبارہ سلمیٰ کے کلینک کی جانب گاڑی کو موڑ لیا۔ 15 منٹ سے بھی پہلے میں وہاں جا پہنچی۔ مجھے دوبارہ اپنے سامنے پا کر میری بہن حیران ہو گئی۔ حیران نہ ہو آپا، دوسری مریضہ لائی ہوں۔ یہ اچانک گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور مرتے مرتے بچی ہے، صدمے میں ہے۔ اس کی کچھ دیکھ بھال کرو۔ نرس کی مدد سے ہم نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ سلمیٰ نے اچھی طرح دیکھا بھالا، تھوڑی سی چوٹ لگی تھی، درد کی دوا دی، پھر اسے سکون کی گولی بھی کھلا دی۔ نیم گرم دودھ کا ایک گلاس پیتے ہی وہ سو گئی۔ تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، صبح آ جانا یا پھر یہیں سو جاؤ، بہن نے تجویز دی۔ میں نے کلینک اور گھر پر فون کر دیا اور خود سلمیٰ آپا کے گھر سو گئی۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو سلمیٰ کلینک جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ ملازمہ نے ہلکا پھلکا ناشتہ اور چائے لا کر دی۔ ناشتے کے بعد میں بھی جلدی تیار ہو گئی کیونکہ رات والی لڑکی کے بارے میں خاصی میں فکر مند تھی۔ آج اس کی حالت کافی بہتر تھی۔ نام پوچھا تو اس نے اپنا نام شمع بتایا۔ سلمیٰ نے پوچھا، کہاں رہتی ہو، پتہ بتاؤ تاکہ تمہارے گھر والوں کو اطلاع کر دیں تو وہ آ کر تم کو لے جائیں۔ اس پر وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ جب ہم نے پتے کے لیے اصرار کیا تو اس نے کہا، میرا کوئی گھر نہیں، اتا پتہ کیا بتاؤں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ کچھ دیر تک ہم نے اسے تنہا رہنے دیا، بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کیا، تاہم اس کی شناخت کے بارے میں معلوم تو کرنا تھا۔ شام کو میں اسے ساتھ لے آئی اور جب رات کو فراغت میسر آئی میں نے پیار بھرے سوالات شروع کر دیے۔ تب اس نے بتایا، میری پیدائش کے وقت امی فوت ہو گئی تھی، مجھے پالنے والا کوئی نہ تھا، تبھی میرے والد نے ایک خاتون زلیخا بی بی کے سپرد کر دیا جن کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ عورت رشتے میں میرے والد کی تایا زاد بہن تھی۔ بہرحال اس نے مجھ ننھی سی جان کو سینے سے لگا لیا اور بہت پیار سے میری پرورش کی۔ ان میاں بیوی نے کبھی مجھے احساس نہ ہونے دیا کہ وہ میرے سگے والدین نہیں۔ میں بھی انہیں حقیقی ماں باپ سمجھتی تھی۔ ابو کے نزدیکی بازار میں ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو روزی دینے والا ہے۔ ابو کی بھی آمدنی اتنی ہو جاتی تھی کہ خوشحالی اور سکون سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ امی نے مجھے میٹرک تک پڑھایا۔ وہ مجھے آگے بھی تعلیم دلوانا چاہتی تھی، لیکن ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میں تعلیم تو کیا، ماں باپ کی محبت سے بھی محروم ہو گئی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ یہ میری زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہے۔ جس روز کالج میں داخلہ لینے میں جا رہی تھی، تبھی اچانک صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو تو دکان پر جا چکے تھے۔
अम्मी ने दरवाज़ा खोला। सामने एक शख्स नज़र आया जिसको देखकर मेरी माँ कतरे परेशान हो गई। इसने कहा, ज़ुलेखा आपा, ऐसी बेमुरवती, क्या अब तुम मुझे अंदर आने का भी ना कहोगी? बेदिली से मेरी माँ ने इसको घर में आने का रास्ता दे दिया। वो अंदर आकर थोड़ी देर रुका, फिर बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तभी अम्मी ने आने का मकसद दरियाफ्त किया। वो बोला, अपनी बेटी को देखने आया हूँ। क्यों, क्या मुझे अपनी बेटी से मिलने का हक भी नहीं? कैसी बात करते हो तुम? ज़रा होश की बात करो। कौन सी बेटी? अम्मी दरअसल ना चाहती थी कि हकीकत हाल मुझ पर खुले और मैं किसी सदमे से दो चार हो जाऊं, लेकिन इस शख्स को ना ही मुझसे लगाव था और ना ही कोई परवाह। तभी बेरहमी से इस अमर पर ज़िद करने लगा कि मैं अपनी बेटी से मिलने नहीं, इसे लेने आया हूँ। तुम्हें शम्मा को वापस देना होगा। अम्मी से ज़्यादा मैं हैरान थी कि अजनबी आदमी जिसको पहले कभी ना देखा था यहाँ पर कहाँ से आ गया और अब मेरे बाप होने का दावेदार है। जब वो हद दर्जा इसरार करने लगा तो अम्मी ने कहा, कैसी बात करते हो तुम? 16 साल तक कहाँ थे जो अब अचानक जिंदा हो गए हो? 2 रोज़ की बच्ची मेरे सुपुर्द करके दोबारा इतने अरसे क्यों खबर न ली और अब अचानक तुमको बेटी की याद आ गई है? मैं ज़्यादा अरसे जेल में रहा हूँ, कैसे आता? अब जान छूटी है तो आ गया हूँ। औलाद को कौन भूल सकता है? मेरी मजबूरियाँ ऐसी थी कि बच्ची को अपने पास ना रख सकता था। आज तक एक पैसा भी इसके खर्च का तुमने ना दिया, अब दावेदार होकर आ गए हो। चले जाओ अभी इसी वक्त यहाँ से। ऐसा ना हो कि अमजद आ जाए और तुम्हारी मुरम्मत कर दे या तुमको धक्के देकर घर से निकाल दे। अगर जान प्यारी है तो अभी और इसी लम्हे घर से चले जाओ। और याद रखना, शमा किसी की बेटी नहीं है, ये सिर्फ हमारी बेटी है। आइंदा इसका नाम लिया तो पुलिस में खबर कर दूंगी। कोई चारा ना देखकर इस वक्त तो वो साहब घर से चले गए, मगर धमकी देकर गए कि बहुत जल्द फिर आऊँगा और अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊँगा। देखता हूँ कि सगे बाप को अपनी औलाद को ले जाने से कौन रोक सकता है। वो शख्स चला गया। अम्मी सख्त वहशत ज़दा हो गई थी और मैं तो इस वक्त कांप रही थी। यकीन ना आता था कि कोई मेरा दावेदार बनकर आया था। लगता था जैसे कि ये कोई एक भयानक ख्वाब था, लेकिन ये भयानक ख्वाब नहीं था, एक भयानक हकीकत थी जिसका इंकिशाफ मेरी रूह को हिला गया। लेकिन ये सदमा तो अब सहना था कि हकीकत का सामना बिलाखिर करना ही था। रोते हुए मैंने पूछा, ये सब क्या था अम्मी जान? जो भी था तुमने सुन लिया बेटी, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम्हारे दावेदार बाप सही आदमी नहीं है। ये चोर चक्का जवारी होता तो भी खम ना था, लेकिन इसने इतनी लंबी जेल काटी तो समझ लो कोई बड़ा जुर्म किया होगा। इसी वजह से हमने तुम्हारे बाप से राब्ता नहीं रखा। अचानक इसने आकर तुमको ले जाने की बात की तो मेरे नज़दीक ये कोई अच्छी अलामत नहीं। तभी तो परेशान हूँ कि मेरा जी डर गया। ये सब जान कर कि तुम्हारे अब्बू का ना जाने क्या रद्द-ए-अमल होगा। खौफ से मेरा दम घुटा जा रहा है। मुझे तसल्ली देने वाली माँ को इस वक्त खुद तसल्ली देने वाले की ज़रूरत थी। मैंने अम्मी को गले लगाया और कहा, डरे नहीं माँ, आपसे मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। मर जाऊंगी लेकिन अपने हकीकी वालिद के पास ना जाऊंगी। इसी रोज़ अम्मी मेरे साथ कॉलेज जा रही थी दाखिला फॉर्म लेने के लिए, लेकिन हमने कॉलेज जाना मुलतवी कर दिया और घर से बाहर कदम ना निकाला। अम्मी शाम तक अफसरदा रही। वो चारपाई पर लेटी रही। रात को अब्बू आए तो इनको सारा अहवाल कहकर बताया और दिल का बोझ हल्का किया। अब्बू भी ये सुनकर परेशान हो गए। बहरहाल मर्द थे, हौसले से काम लिया और अम्मी को तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करो, वो हमारी शम्मा को हमसे जुदा नहीं कर सकता, चाहे वो इसका हकीकी वालिद ही क्यों ना हो। अब सबसे बड़ा मसला मेरी तालीम का था। अम्मी अब्बू मुझे कॉलेज में पढ़ाना चाहते थे। बड़ा धड़का इस बात का था कि मेरा सगा बाप वहाँ पहुंचकर मुझे परेशान न करे। इसी खौफ से दाखिला न ले सकी और वो साल ज़ाया हो गया। कुछ माह गुजर गए। वो साहब जो मेरे बाप होने के दावेदार थे वो दोबारा ना आए। अम्मी अब्बू समझे कि अब अकल आगे होगी कि बेटी जहाँ पली बड़ी है वो अच्छे इंसान है, अच्छे माहौल में रखा है, इसे वहाँ से दूर ना करूँ। हमारी तो ये सोच थी,
मगर वो साहब किसी और ही सोच के मालिक निकले। एक रोज़ जबकि अब्बू दुकान पर थे, मैं और अम्मी अकेले थे। वो अपने 3 साथियों के हमरा घर में घुस आए, अम्मी को कमरे में बंद कर दिया और मुझे ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालकर ले गए। खुदा जाने मेरी माँ का क्या हाल हुआ होगा और अब्बू भी गम से निढाल ही होंगे। लेकिन अकबर साहब को इन पर तो क्या, मुझ पर भी रहम न आया, जिसको वो अपनी सगी बेटी कहते थे। जब मैं रोती कहते, मैं तेरा हकीकी बाप हूँ, नादान लड़की, जो कुछ कर रहा हूँ तेरे भले के लिए कर रहा हूँ। मजबूर था जो तुझे इनके हवाले किया। घर में तुझे कोई पालने वाला ना था। मुझ पर दुश्मनों ने झूठे मुकदमे बना रखे थे, क्योंकि मैंने बुरे वक्त में इनसे कर्ज लिया था और वापस न कर सका, तो मुझे इन्होंने सज़ा दिला दी। अब मैं इन लोगों के चुंगल से निकल कर आ गया हूँ, अपनी बेटी के साथ रहूँगा। इतने अरसे से तेरी जुदाई बर्दाश्त की है, अब नहीं कर सकता। मेरा कोई बेटा नहीं है, तू ही मेरा बेटा है और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी है। गर्ज ऐसी बातें करके वो मुझे बहलाने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे इस शख्स से कोई उनसियत ना थी। बस अपनी अम्मी अब्बू की याद सताती थी, जिसके पास में रही थी और जिन्होंने मुझे पाला पोसा था। जी चाहता था इनके पास चली जाऊं, लेकिन कैसे जाती? सगा बाप तो मुझे ताले में बंद करके घर से बाहर भी न जाने देता था। मेरे रोने का भी इनके दिल पर कोई असर न होता, खुद रोने बैठ जाते। कहते, तुझे क्या खबर कि औलाद की मोहब्बत क्या चीज़ होती है। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बाकी ना रहा, एक तेरे सिवा, जिसकी खातिर मैं ज़िंदा हूँ। सोच ज़रा, बुढ़ापे में तेरे सिवा कौन होगा जो मेरा हाथ पकड़ेगा। वक्ती तौर पर ऐसी बातों से मेरे दिल में अपने लिए रहम जगाने की कोशिश करते थे, लेकिन मुझे पालने वाले वालिदैन का प्यार ना भूलता था। एक दिन अकबर अब्बा एक शख्स को अपने साथ लेकर आए और कहा, बेटी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लिहाजा तुझे महफूज हाथों में सौंपना चाहता हूँ, तेरी शादी करना चाहता हूँ। ये शख्स मेरे बचपन का दोस्त है, इसके बेटे से तेरी शादी होगी तो इससे चचा कहेगी। फिर इसी शख्स यानी कि चचा अहमद ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, फिक्र न कर बेटी, तू हमारे घर बहुत सुखी रहेगी और राज करेगी। फिर अकबर अब्बा ने मुझे अपने दोस्त के लिए चाय बनाने को कहा। ये दोनों कमरे में जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। जब मैं चाय की ट्रे लेकर इनके कमरे की तरफ गई तो दरवाजे के पास में ठहर गई। वो बातें करने में महव थे। अकबर अब्बा कह रहे थे, अहमद, मैं रकम नकद लूँगा, तुझे 3 लाख देने होंगे, तब शमा का निकाह तेरे बेटे से करूँगा। बस फिर इसके बाद मेरा इसके साथ कोई राब्ता न रहेगा। तुम इसको जीता रखो या मार दो, ये तुम्हारी मलकियत होगी। ये अल्फाज सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। गोया बाप होने का दावेदार मेरी शादी नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे बेच रहा था। इस बात का इतना गम लगा कि बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ी रह सकी। अब तो मुझे अपनी जुलेखा अम्मी और अब्बू बहुत याद आ रहे थे। इनसे राब्ता करने की कोई ज़रिया भी ना था। इन दिनों सेल फ़ोन भी ना थे। आस पड़ोस वालों को बस इतना पता था कि अकबर अपनी बेटी को घर ले आया है। इस बात के सिवा वो कुछ ना जानते थे। ना वो मुझसे मिलते थे और ना ही मुझे इनके यहाँ आने जाने की इजाज़त थी। एक रोज़ अब्बा एक कागज़ लाए और इस पर मेरे दस्तखत करवाना चाहते थे। तब मैंने एक चाल चली। मैंने इनको कहा कि मुझे जलेबियाँ खानी हैं, अगर ये मिठाई खिलाओगे तो मैं दस्तखत करूँगी। वो बोले, जलेबियाँ ज़रा दूर से मिलती हैं, कल ला दूँगा। लेकिन मैंने ज़िद कर ली कि नहीं, मैंने आज ही खानी है। शाम हो रही थी। वो मेरे लिए जलेबियाँ लेने चले गए। दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। ताले की एक चाबी इन्होंने अपनी अलमारी में छुपा कर रखी हुई थी, जो मैं देख चुकी थी। इनके जाने के बाद मैं छत पर गई और वहाँ से साथ वाले घर की छत पर झांका। तकरीबन 8-9 साल का बच्चा पतंग उड़ा रहा था। लड़के को चाबी देकर कहा कि बाहर से मेरे घर का ताला खोल दो। वो तो बच्चा था, कोई सवाल न किया, मेरे हाथ से चाबी ली और जीना उतर गया। बाहर निकलकर ताला खोला और चाबी मुझे दे दी। मैंने बड़ी सी चादर ओढ़ ली और उसी वक्त घर से निकल गई। मालूम ना था कि कहाँ जा रही हूँ, बस तेज़ी से भागती जा रही थी। चाहती थी इस जगह से दूर चली जाऊँ, इससे पहले कि अकबर अब्बा मुझे ढूंढ लें। घर से काफ़ी दूर निकल आई थी कि आपकी गाड़ी से टकरा गई और आपके पास पहुँच गई।
अपनी आप बीती सुनाकर शमा खामोश हो गई। इसे तसल्ली दी कि परेशान ना हो, मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू से राब्ता करूँगी और तुमको इनके पास पहुँचा दूँगी। मैंने अपना वादा पूरा किया और शमा को लेकर इसके बताए हुए पते पर इन लोगों के पास ले गई। वो दोनों मियाँ बीवी शमा के लिए बेहद परेशान थे। कभी सोचते थे कि कानूनी चारोजोई करें, फिर सोचते थे क्या खबर क्या कानूनी सूरत बने, क्योंकि लड़की तो अपने हकीकी वालिद के पास थी। शमा को देखा तो इसकी अम्मी ने वालेहाना इसे गले से लगा लिया और बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। शमा भी रोने लगी। यह नज़ारा देखने लायक था। कोई नहीं कह सकता था कि ये इसके सगे माँ बाप नहीं हैं या वो इसकी हकीकी औलाद नहीं। पालने पोसने का रिश्ता असल रिश्ते से ज़्यादा मजबूत लग रहा था। शमा को इन्होंने कुछ दिन छुपाए रखा। अकबर कई बार आया मगर इन लोगों ने ना बताया कि शमा इनके पास है। बाद में जुलेखा और उसके शोहर ने एक अच्छा रिश्ता देखकर लड़की की शादी कर दी। शमा से अब मेरा भी अनदेखा रिश्ता कायम हो चुका है। जब ज़िंदगी के कामों से फुर्सत मिलती है तो इसकी खैर खबर को ज़रूर जाती हूँ। वो अपने घर में खुश है। एक मौका आया कि इसका शोहर बेरोज़गार हो गया। मैं इसे अब एक बहन की तरह समझती हूँ, सो मैंने इसके शोहर को अपने क्लिनिक पर मुलाजिम रख लिया। तब से अब तक जुनैद मेरे क्लिनिक के तमाम इंतज़ामात संभालता है। मैं इसका ख्याल ऐसे रखती हूँ जैसे वो मेरा छोटा भाई हो। एक अच्छी बात ये भी हुई कि जुनैद ने शादी के बाद शमा के पढ़ने पर पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि इसको एमए के पर्चों की तैयारी में मदद भी दी। यूँ इसने शादी के बाद एमए कर लिया। घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ इसने अपनी तालीम भी मुकम्मल कर ली और एक करीबी स्कूल में टीचर लग गई। दोनों मियाँ बीवी ने हिम्मत से काम लिया। आज वो अपने बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शमा की अम्मी अब्बू जब तक ज़िंदा रहे इनकी खिदमत में इस लड़की ने कोई कमी नहीं आने दी और उनके बुढ़ापे में उनका ख्याल रखती रही। आज वो इस दुनिया में नहीं, मगर शमा अब भी इनकी मग़फ़िरत की दुआ करती है। कहती है जैसे इन्होंने मुझे 2 दिन की बच्ची को प्यार से पाल पोस कर अपने घर का किया, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी इनके लिए दुआगो रहूँ। अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।